post COVID, I had applied for the law. Apart from this, I was used to making my own startup and reading the law books and going through the barracks myself. Apart from being an advocate, I want to do the solicitor. So I need some guidance or someone who can give me help me with the nitty-gritty build. Apart from just studying for this course, how what is the scope of this course, what will be implementation. So they have the best of the thing, best of the modern practices. They are also teaching the AI, the tools, not just the legal language, but way beyond the legal language. Personally, ऐसे देखें तो मेरे पास at present 80 clients हैं. So what we have work at hand is primarily deem conveyance, collector office, land acquisition, SPF. The law came to me as a destiny. Okay. I was previously into the finance profession as I completed my graduation Bachelor of Accounting and Finance in 2018. Okay. Post COVID, I had applied for the law LLP degree along with the CFA, which I was pursuing, as I already completed level 1 of the CFA. But the thing was, apart from this, I was used to making my own startup and reading the law books and going through the barracks myself. So I was like, I will get an additional weightage with the law degree because I'm already fond of reading. I used to read 8 to 10 barracks in a month. Law degree I started in 2020. COVID में हुआ because I filled the form before that. But the thing is, because of everything delayed due to COVID and everything, the 2020 में start हुआ. And I was the head of my class as well, 240 के बैच का in the Jitendra Chauhan College of Law. That is made by SVKM, well known across the globe. Because startup में खुद establish करने के लिए I used to read law myself and I never relied. I mean never advice लेने भी नहीं किया खुद के parents से भी कि ये करना है वो करना है. I read everything myself and ये because I believe कि जो खुद से करते हैं उनको पता रहता है कि डीड से कैसे बनता है घर. So I believe कि खुद से ही independently सारी चीज़ें की and day one से मुझे self independent self made man की तरफ मैं like होते हैं because पेरेंट्स ने भी खुद से किया है तो मैं भी खुद से करूँ. तो दे हैव बीन माई आइडियल फॉर डूइंग थिंग्स माई सेल्फ रेदर देन रिलाइंग. कभी कहीं अटक गए किसी दिन तो मतलब भगवान ना करे तो एडवाइस ले ली वरना फिर खुद से मतलब जब तक नहीं सुलझा सकते तो फिर तुम कैसे दूसरों के सुलझाओगे प्रॉब्लम्स, एडवोकेट कैसे कहलाओगे. तो दैट वाज द थिंग इन माई माइंड कि अगर मुझे किसी और के पास आना पड़ेगा तो कोई मेरे पे कैसे रिलाई कर पाएगा. दे वर क्वाइट हैप्पी. दे न्यू कि मेरे को अगर करना है कुछ तो वो करके रहेगा. इसलिए मैं तो सीईटी में मार्क्स इतने आ गए थे तो लाइक आई वाज लाइक कि मेरे यहाँ नियर बाई कॉलेज है, मैं उससे कर लेता हूँ. और मॉर्निंग में कॉलेज, इवनिंग में ऑफिस एंड ये. बट सिंस दे वर लाइक कि मार्क्स अच्छा है तो आप मिकीफाई में जाओ, मिकीफाई में अच्छे से करो लॉ. तो फुल टाइम आई डिड ऑल असाइनमेंट. आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ मूड कोर्ट कमिटी. इंटरनेशनल मूड के लिए अमेठी गया था मैं. So all sorts of experiences of mooting and everything because they gave me a whole twist and turns along with the internship at the central government and the Solicitors Lex law firm जो कि रेहरा की ड्राफ्टिंग कमेटी में था. तो सारे एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, इंटरनेशनल लॉ, इंटरपोल, सारे मतलब you name it I have it. Losico I came across during the first year. I passed out in 2023 itself. So around 2023 itself, I came across Losico. That apart from being an advocate, I want to do the solicitor. So I need some guidance or someone who can give me, help me with the nitty-gritty build the way I have built a practice from the stones. So the Law Seco helps by giving professional guidance by only doing the inquiry for a course from step to step, that how apart from just studying for this course, how what is the scope of this course, what will be implementation and how you can get the whole enrollment as a solicitor. So I was personally looking for the UK solicitor and that is what I enrolled for in the Law Seco. My parents ऑलरेडी हैप्पी थे कि मतलब मैंने लॉ को भी ज्वाइन किया बिकॉज उनकी जितनी है सारे पास स्टूडेंट्स के उनको वर्ड की माउथ ऑफ पब्लिसिटी इतनी आ गई थी पहले से ही कि वो तो कुछ सोशल मीडिया पे तो यूट्यूब वगैरह वो भी देखते रहते हैं सारे वीडियोस. बट अपार्ट फ्रॉम यू ऑनलाइन मार्केटिंग ऑफलाइन भी इतने अच्छे रिव्यू कमेंट्स थे. तो दोनों ने सामने से ही पूछा था कि प्रैक्टिस स्टार्ट करने से पहले कि
if you want any additional help for making your practice and building your practice, तो तुम हमें बता सकते हो आफ्टर द लॉ ग्रेजुएशन या ड्यूरिंग द लॉ ग्रेजुएशन डे। तो तुम्हें लॉ सीखो हमारे पास है, तो लॉ सीखो इज़ ऑलवेज देयर, तो तुम्हारी प्रैक्टिस बिल्डिंग में पूरा ऐसा पर्सनल कोच तुम्हें ब्रांड बिल्डिंग के लिए हेल्प कर पाएगा। तो उसके लिए तुम्हें हमारी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज दे नो ऑल द बेस्ट ऑफ द प्रैक्टिस एंड सारे AI टूल्स एंड सब कुछ है। तो जब लॉ सीखो है तो कहीं और क्यों जाना। तो आई न्यू I had to choose something which I felt would help my practice grow more than but what I am looking for. Right. And Losico was always there. So being around the advertisement, newspaper, and primarily Ramaraj Mukherjee, who is the founder, is always active on the LinkedIn, and I also follow him personally. Right. So I thought of doing solicitor as advocacy is already there. So becoming an advocate, apart from that, I wanted an international law degree. So, and apart from that, mainly the Indian whole legal system came from the UK. Right. So I thought of taking that course, which is the UK solicitor examination, and I pursued the same. Apart from that, it also has a mentor which helps you with the practice. The online freelancing is there. Also, in case if someone is looking for the job, then the law jobs are also available and posted in the same. So it is always there, the key skill. But as a mentor, it is not just a coaching classes, but it's a personal mentor that gives you guidance for studying, for practicing, for earning, for freelancing. You name it, they have it with themselves. So it is not just a coaching class which will teach you like any other subject or any college, but it is a personal brand building and a profession building coach which helps you overall along from the academics to the work and everything. So they have the best of the thing, best of the modern practices. They are also teaching the AI, the tools, not just the legal language, but way beyond the legal language. Right. So we get to learn everything from them, that what is the base thing, what is the basic skeleton, the final drafting, what are the clauses as per the situation, what are to be modified. लिंक्डइन पे मैं पर्सनली पोस्ट कभी कभी करता हूँ, लेकिन मैं पोस्ट रीड ज़्यादा करता हूँ, स्पेशली रामराज मुखर्जी के जो फाउंडर है लॉसिको के, बिकॉज उनकी पर्सनल स्टोरी लो या फिर लॉसिको एज अ उनका लिस्टिंग हुआ है तो वो स्टोरी लो, या फिर उनका जो लीगल प्रैक्टिस के लेटेस्ट ट्रेंड्स आते रहते हैं, तो काफ़ी अपडेटेड रहता हूँ उनसे। हमारे ऑफिस में जितने भी इंटर्न्स एंड एसोसिएट्स हैं, दे ऑल लुक अप टू कि when I practice and they see me in the courtroom, they have personally witnessed कि landmark judgments I said testamentary में under section 222 for the executor by implementation by implied by necessary implementation, तो उसके लिए भी आ गए हमारे। एंड बाकी जो 7-8 साल पुराने मैटर्स थे वो भी 1 day 2 day भी डिस्पोजल हुए हैं प्रॉपर्टी रिलेटेड। तो दे आर ऑल वेरी हैप्पी कि सीइंग कि कितने फास्ट मतलब मूविंग हो गए इसलिए से। सो बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब भी आता है केस तो वी प्रिपेयर ड्राफ्ट एंड मतलब हम लोग शुरू हो जाते हैं कि ड्राफ्ट आई मीन कंप्लेंट आया है उसका रिप्लाई देना है, रिटर्न स्टेटमेंट, एंड वी बिगिन द गेम जैसे पूरा ट्रायल खत्म करने के लिए। बट समटाइम्स वी मिस आउट इन द प्रोसीजर द लीगल एक्यूपमेंट कि समटाइम्स वो एंटिटी ही नहीं है बट उनके नाम से 7-7 साल से केस चले जा रहे हैं बिकॉज वो फाइलिंग एंटिटी बंद हो गई है या फिर वो नाम से ही नहीं है। तो वी फॉरगेट द लीगल एक्यूपमेंट, जिससे मतलब वो सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्ट नहीं करता, कॉज ऑफ एक्शन नहीं, वी फॉरगेट द बेसिक्स एंड वी गो टू द एडवांसेस। तो दैट इज़ द वेरी बेसिक थिंग कि AI आए या कुछ भी आए, बट वी हैव टू बी वेरी डिलीजेंट विद आवर वर्क एंड वी ओपन द बुक्स ऑलवेज। इसलिए से हर बार प्रोसीजर पढ़ी जाती है, चेकलिस्ट बनाए जाते हैं, प्लेन जो ड्राफ्ट आया है सामने वालों ने सर्व किया है वो पढ़े जाते हैं, एंड फर्स्ट जो उठाया जाता है वो लीगल एक्यूपमेंट होता है एंड देन लॉ की तरफ प्रोसीड करते हैं। करंटली आई एम प्रैक्टिसिंग इनटू टेस्टामेंट्री एंड प्रॉपर्टी लॉ, प्राइमरली लैंड एक्विजिशन चल रहा है हमारा, वी आर इनटू रीडेवलपमेंट एंड कन्वेंस मैटर्स। सो वी ऑल हैव कलेक्टिव वर्क एंड लैंड कन्वेंस वर्क एंड सारे टाइटल क्लियरेंस के लिए whatever is required, we do the needful. We take up the society or building as a whole, and for the conveyance and the redevelopment, apart from the property, land acquisition and the inheritance matter, which are ongoing. Right. Apart from that, we also have full litigation of
consumer NCLT, because we'll have a full-fledged offer Right. into civil and litigation practice. Anything we have it, because I'm being a second generation lawyer. My parents are also having 30 plus years of practice. Mom has been into corporate of Reliance Group company, and dad has been into the property since past 30 years, and half of the development and title certificate are in there. We are all doing independent practice. Okay. So they are both notary and central government public notary as well. So we believe in individuality. So because we give our A game when we are on our own, so we are handling our clients and everything separately. Personally, ऐसे देखे तो मेरे पास एट प्रेजेंट 80 क्लाइंट्स हैं. मैटर्स मेरे पास हाई कोर्ट की लिमिटेड है बिकॉज हमारा प्रॉपर्टी का ज़्यादा प्रैक्टिस है. सो व्हाट वी हैव वर्क एट हैंड इज प्राइमरली डीम कन्वेंस, कलेक्टर ऑफिस एंड एक्विजिशन क्लियर. राइट. एंड नंबर्स में नहीं गिन सकते बिकॉज कभी सोसाइटी आती है, कभी इंडिविजुअल आते हैं. अभी रहरा का भी केस फाइल है एंड टीम कन्वेंस का भी फाइल है एंड हाई कोर्ट में भी फाइलिंग है. इसलिए आज के टाइम में रेगुलेशन इतना बढ़ गया है हमारे प्रॉपर्टी प्रैक्टिस में कि जो आज से 5 to 10 ट्रांसफ़र पहले भी थे जिस पे आज बिल्डिंग खड़ी है 50-60 ईयर्स से भी, तो उसमें भी अगर किसी ने बीच में अगर एक ट्रांसफ़र किया होगा लीगल एयर ने, जिनके जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी उनका किया हुआ बट उनका प्रोविट नहीं है, तो उनके लिए भी आज जाना पड़ता है. सो लैंड वर्थ एंड बिकॉज पूरा रेगुलाइज करना पड़ता है आज के टाइम में ट्रांसफ़र टू एंश्योर दैट देयर इज़ नो इनवैलिड ट्रांसफ़र. जो भी मतलब कुछ है वो सारा मतलब एवरीवन नीड्स टू बी क्लीन्ड अप बिकॉज दैट्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन द बिल्डिंग. एसक्यू का प्लान मेरा 27 तक जाएगा बिकॉज मेरे कुछ पर्सनल है चीज़ें की रिलेटेड टू बिजनेस एंड रिलेटिंग टू लाइक मैरिटल लाइफ. तो अभी मतलब इन प्रोग्रेस है सारे एंड मैं उसमें से ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग कर चुका हूँ. कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट. एडवांस कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी. राइट. बिकॉज वो एक चीज़ थी कि वो हो सकती है एंड वो इम्प्लीमेंटेशन भी हो सकती है. एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना एंड कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग के लिए प्रैक्टिस करना बिकॉज प्रैक्टिस इज ऑलवेज गोइंग ऑन. जी एक ही बात कहूँगा कि आपके अंदर मेन चीज़ तो कॉन्फिडेंस है. इसलिए कॉन्फिडेंस है तो आप दुनिया जीत जाएंगे. कॉन्फिडेंस हार के तो कहीं नहीं पहुँचेंगे. तो जो भी प्रैक्टिस करिए, आप लिटिगेशन करिए, नॉन लिटिगेशन करिए, और आप लोग को अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कर लूँगा. एंड देयर आफ्टर आप रिसर्च करना पड़े. आपको नॉन लिटिगेशन में आप टाइटल सर्टिफिकेट बनाइए, आप JV एग्रीमेंट बनाइए, आप कुछ भी बनाइए, आप कुछ भी प्रैक्टिस करें. बट कॉन्फिडेंस इज़ द की. कॉन्फिडेंस अगर हार गया तो कुछ नहीं हो पाएगा. बाकी सीखने के लिए हमेशा याद रखिए ABCD से शुरू करना है. कहीं पे भी जाके आप टॉप से बॉटम जाएंगे तो नहीं हो पाएगा. वो तो इमारत जिसका लिंक नहीं है, जिसका सपोर्ट नहीं है, वो टूटने ही वाली है. तो आप सपोर्ट नीचे से ऊपर शुरू करिए. इसलिए ABC से शुरू करिए, जो भी करिए स्पेशलाइज करके शुरू करिए. दैट विल बी द वन फ्रॉम माय साइड.